کہ یہ پل جس کو روزانہ کی بنیاد پر نوچا جاتا ہے, چرایا جاتا ہے اور یہاں سے قیمتی لوہا نکال کر بیچا جاتا ہے. سر یہ جتنے لوہے کے گارڈر ہیں سب کھول کے لے گئے ہیں, رسے کھول کے لے گئے ہیں, بہت قیمتی چیزیں سب اٹھا کے لے گئے ہیں, کیونکہ ہمارے آباؤ اجداد کی محنت ہے اس کے اوپر, اور یہ پرانا ورثہ ہے. تو وائی ناٹ بھائی, اگر آپ ٹورزم کے لیے آئے ہیں تو آپ اس خوبصورت پل پر آئیں, یہاں کی خوبصورت ہواؤں کو انجوائے کریں, یہاں کے خوبصورت مناظر کو دیکھیں, یہاں پر نیچے ندی جو بہ رہی ہے اس کو دیکھیں. لیکن نہیں بھائی, سب سے بڑی ریونیو جنریشن جو ہے وہ ٹورزم ہے, تو ہم ٹورزم کو ہی برباد کر رہے ہیں. یہ گلیات کا مین گیٹ ہے. کیسا لگے گا کہ ایک گیٹ ادھر کھڑا ہو, ایک گیٹ ادھر کھڑا ہو, درمیان والا سب کچھ لے جائے لوگ. شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام, یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. السلام علیکم ناظرین, مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے. میرے کب میں آپ پاکستان کا ورثہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ثقافت تھی, یہ پاکستان کو ورثے میں ملنے والی وہ چیزیں تھیں جن کو ہمیں انٹیکٹ رکھنا تھا, صدیوں سے چلے آنے والی چیزیں. لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کی ہے کہ جس سپاٹ پر کھڑے ہیں اس کی سب سے خوبصورت بات کیا ہے, بدبختی کے حوالے سے. دو قسم کی خوبصورتی ہوتی ہے, ایک وہ جس پر ہم فخر کر سکیں, ایک خوبصورتی وہ جو دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے تاکہ انسان بنو. یہ علاقہ جو ہے یہ قدرت کی کتنی بڑی نعمت ہے جس کو اگر ٹورسٹ سپاٹ سے بھی دیکھا جائے, مقامی لوگوں کی بات بعد میں کر لیں گے کیونکہ مقامی لوگ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتے ہیں, تو اگر ٹورزم کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو پوری دنیا کی اٹریکشن تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم آزادی حاصل کی عرصہ ہو گیا, ہم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو سکے کہ ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ پل جس کو روزانہ کی بنیاد پر نوچا جاتا ہے, چرایا جاتا ہے اور یہاں سے قیمتی لوہا نکال کر بیچا جاتا ہے, یہ تھانے کس کی حدود میں آتا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ 4 تھانے ہیں, مشرق, مغرب, شمال, جنوب, لیکن چاروں میں سے کوئی یہ طے نہیں کر پا رہا کہ اس پل کا اصل والی وارث ہے کون, یہاں سے ہونے والی چوری کو دیکھے گا کون. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چوری دا مال ڈانگا دے گز, وہ گز بھی بڑا ہو جاتا ہے جب چوری کے مال کو آپ پیمائش کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر کوئی والی وارث نہیں ہے. سمجھتے ہیں یہاں کے لوگوں کی کہانی انہی کی زبانی, they have got an alternative bridge, ایک الٹرنیٹو برج ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ٹورسٹ سپاٹس پر ہمیں تو اپنے قدیمی ورثے کو بھی بچا کے رکھنا تھا, لیکن ہم نہ جانے کیا چاہتے ہیں. سمجھتے ہیں ان کی کہانی, ان کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے پل اور جگہ کا نام کیا ہے؟ سر یہ علاقہ ہے یونین کونسل دمتوڑ, وی سی گرل ڈوک. دمتوڑ, یہ تو بڑا تاریخی علاقہ ہے. جی جی, یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ مغلوں اور ترکوں کی جنگیں شنگیں بھی ہوتی جی سر, بہت پرانا علاقہ ہے جی. بے شک. ہاں, تو اب یہاں پہ کیا عذاب ہے, یہ کیا حالت ہوگی, یہ کون لے گیا؟ سر اس طرح کیا ہے کہ یہ پل آپ کو دیکھ رہے ہیں, ہم سب سے پہلے تو نیو ٹی وی کا اور آپ کی جو ٹیم آئی ہوئی ہے عمران ارشد صاحب کی نگرانی میں, اور اتنے دور علاقے سے اور اتنے پسماندہ علاقے میں ہماری نشاندہی, ہمارے کہنے پہ ہماری جگہ دیکھنے پر آپ آئے. ہم الیان علاقہ, پورا علاقہ پل کے منسلکہ جو ہے نا تقریباً 7-8 گاؤں ہیں آگے. ٹھیک ہے, تو ان کی جانب سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ کو خراج تحسین پیش. کون لے گیا یہ پل؟ سر یہ اس طرح کا ہے کہ تقریباً 2-3 ماہ سے یہ پل روز کی بنیاد پر رات کو کھل رہا ہے. اچھا جی. جس کے لیے ہمارے پاس پروف ہے, ہم نے ڈی آئی جی صاحب کو بھی درخواست دی ہے, اس کی بھی جو سکرین شاٹ ہے ہمارے پاس موجود ہے. ڈی پی او صاحب کو بھی درخواست دی ہے, اس کی سکرین شاٹ ہمارے پاس موبائل میں موجود ہے. اس کی باقاعدہ طور پر وفاقی متصب عدالت ہے, اس کو بھی ہمارا کیس چل رہا ہے, اس کی بھی آگے ڈیٹ ہو رہی ہے, لیکن اس پہ کارروائی کوئی نہیں ہو رہی. صرف آج ڈیٹ ہو رہی ہے, بس یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں عدالتی نظام کو, وہ بڑوں کے لیے عدالتی نظام ختم ہو جائے گا, خالی ہو جائے گا, ایک پلر ادھر کھڑا رہ جائے گا, ایک ادھر رہ جائے گا. جی سر, یہ جتنے لوہے کے گارڈر ہیں سب کھول کے لے گئے ہیں, رسے کھول کے لے گئے ہیں, بہت قیمتی چیزیں سب اٹھا کے لے گئے ہیں. لیکن ہماری جو درخواستیں ہیں وہ ردی کی ٹوکری جا رہی ہیں, ہمارے سننے والا, اس پر عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جب ہم ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں جی, ہمیں تھانے کو کریں, ہمارا تھانہ ہے ادھر جی رجویہ, جو ابھی تھانے نئے بنے ہیں نا, اس میں ہمیں ارنو سے نکال کے تھانہ بنگلوتر تھا پہلے ہمارا,
उससे हटाकर हमें रजोइये के साथ लगाया गया। रजोइये हम जाते हैं, वो कहते हैं जी ये हमारा तो इलाका ही नहीं है, बहुत दूर इलाका है, हम उधर जा नहीं सकते। जब हम बगनौतर दरख्वास्त लेके जाते हैं SHO साहब के साथ, जी हमको DIG साहब ने ये दरख्वास्त मार करके दी है, आपने मौका पर जाके देखिए हमारा पुल खुल गया है। वो कहते हैं जी आप रजोइया SHO के साथ रब्ता करें। SHO रजोइया के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ये नवांशहर का इलाका है, नवांशहर का SHO साहब इधर आते हैं, वो कहते हैं ये तो हमारा इलाका ही नहीं है, ये गल टोक लगता है जी बगनौतर के साथ लगता है या रजोइया के साथ लगता है। हम आपकी तवज्जो से ये अलियान जो इलाका जो है ये काम बाला से ये दरख्वास्त करते हैं, हमें ये बताया जाए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं या किस इलाके में हैं, किस थाने के साथ मुंसलिक है, हमारा कोई निज़ाम भी है, हमारा कोई ऊपर देखने वाला भी है, कोई जुर्म को पकड़ने वाला भी है। लेकिन नहीं है जी, किसी SHO के पास भी जाए वो कहते हैं फलां SHO के पास जाएं, लेकिन हमारी आज तक ना किसी अदालत से, ना किसी DIG से, ना DPO से कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या गुनाह किए हैं सर? कुछ तो किया होगा, गुनाह तो बहुत ज़्यादा है, कुछ किया होगा जो बता नहीं रहे कि 150 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियों से, इतनी मेहनत से, अपनी मदद आपसे बनाया था? नहीं, गवर्नमेंट ने दिया था, गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट ने दिया था, मगर ये हमारी आबा अजदाद ने इतनी मेहनत की थी। हाँ। उस मेहनत का आज जो ये हाल देख रहे हैं आप, हमें ज़ाती तौर पे इस पर अफसोस हो रहा है। इस पे भाई ने बता भी दिया आपको कि 5-6 माह हो गए हैं इस पे, जितनी मुझे समझ नहीं आई बात सुन। गार्डर जब उतरे हैं सर, अच्छा, इसकी रिपोर्ट थानों में भी हुई है, और जैसे उन्होंने कहा कि सारे मुतल्लिका अदारों को इसका बताया गया है, या तो इस पुल को मरम्मत किया जाए क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद की मेहनत है इसके ऊपर, और ये पुराना विरसा है, लोग विरसों को ज़या नहीं करते हैं, उनको बचा के रखते हैं। लेकिन हम विरसे बचाने के आदी नहीं है, आदि नहीं है, मगर अभी ये मजबूरी है सर हमारी। अगर आदि नहीं है उसके लिए एक ही काम करना पड़ता है, इसको ज़ाया होने से बचाया जाए, इसको यहाँ से उठा के गवर्नमेंट के थ्रू उस इलाके में लगाया जाए, किसी इंसानियत के काम आ सके। हाँ। फिर तो हमें पता है कि हमने विरसों को नहीं बचाना है। अगर आपको लगता है इतना शऊर है? अगर हो सके, मैं ये कहता हूँ कि पहले तो इस विरसे को बचाया जाए। यहाँ पे आपने ये असल बात ये, इसको इसी तरह इंटैक्ट होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ टूरिस्ट आ सके। बिल्कुल सर, हमने यही एप्लीकेशन दी है कि देखे ना वो डोली, वो ऊपर तार दिखाएं यार, ये उधर से डोली लटकते हुए जाती है, और पीछे आपको पता है कि डोली का हादसा भी हुआ था, तो अल्लाह पनाह ता फरमाए। ये एक लंबी डोली है, यहाँ से लोगों ने इस डोली के जरिए जाना है, तो वाई नॉट भाई, अगर आप टूरिज्म के लिए आए हैं तो आप इस खूबसूरत पुल पर आए, यहाँ की खूबसूरत हवाओं को एंजॉय करें, यहाँ के खूबसूरत मनाजिर को देखें, यहाँ पर नीचे नदी जो बह रही है उसको देखें। लेकिन नहीं भाई सर, हमने भी देखा है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे अरसा दराज से जो पुल बने हैं ना, जिनको 300-300 साल हो गए हैं, वो भी अपनी जगह पे बरकरार हैं। सर वो कौमें और होती हैं, बरकरार हैं। हमारी भी इस बाला काम से रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी आपके चैनल के थ्रू कि इस पे भी नज़रसानी करके इसको मरम्मत किया जाए। मुझे एक चीज़ बताएं, अस्सलाम वालेकुम जी, लाला ये कौन काट के ले गया? यही तो हम फरियाद कर रहे हैं सर कि ये कोई काट कर ले गया ना, ये सारा हटे, काट थोड़ी कर जगह ले दे गया दी, थोड़ी सी जगह दे, कैमरा इधर लेके आए, थोड़ी सी जगह लाला इधर दे दें। ये तारे हैं जी, और ये इतनी भारी तार है कि इसको उठाना इट इज अ थिंग, ये कोई सादा सी चीज नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे कोई कहे कि 10-20 दफा इसको यूं करो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मेरे पसीने निकल आएंगे। ये इतनी भारी और कीमती तारे हैं, और ये ब्रिज है जो कि अब बदकिस्मती का शिकार है। सिर्फ वजह क्या है कि अदम तवज्जही और शायद नए प्रोजेक्ट्स की तरफ तवज्जो करने के लिए। पुराने बर्बाद होंगे तो नए बनाने पड़ेंगे ना, तो जब नए बनेंगे तो कमीशन आएगा, और कमीशन आएगा तो हराम आएगा, हराम आएगा तो कईयों की चांदी होगी, जब हराम की चांदी होगी तो कईयों के पेट में आग भरी जाएगी। तो भाई सादा बात, दो चीज़ों को बात करता हूँ कि इसको बचाएं ताकि उस आग से बच सकें, और ये मकामी लोगों का विरसा है यार, दे हैव गॉट एवरी राइट। ये तारें निकल गई हैं, सारी परली तरफ से निकल गई हैं। वैसे मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं तारें दिखा रहा हूँ, उधर तो पूरा पुल ही निकल गया है। आए जी जरा, अब ये जो 1 2 3 4 5 6 गार्डर कीमती और भारे कदीमी गार्डर्स जो हैं वो लटक रहे हैं। वैसे तो पूरा पुल ही लटक रहा है ना, लेकिन ये जो है ये एक कट की मार है, एक कट लगाया। ओहो ओहो हो, इधर आए जी, करीब लाएं, इधर लाएं। वो नीचे ट्रैक्टर के टायरों के निशान है जी, वो देखें सर,
सर वो ट्रैक्टर यहाँ पर क्या करने आते हैं? सर ट्रैक्टर तो अभी शायद ज़मीनों के हिसाब से आता है, वो अपना क्या करने आते हैं? यहाँ से लेकर नीचे अपना ये जसवाल गांव है, आगे 5-7 गांव है, इसी रास्ते पे ले जाते हैं नीचे ज़मीनें करने के लिए। ये नदी के अंदर से गुजर के? हाँ, नदी के अंदर से गुजर के सर। नदी के अंदर से। अच्छा, फिर ये ट्रैक्टर के नहीं? ये हो सकता है ये बात की, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है, नीचे गिरा और नीचे कोई हुआ ऐसे ही तो है, उसके सर पे गिरेगा। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। अभी ट्रैक्टर भी जाता है, अगर अभी भी चलेगी ना, ये जब नीचे तो जब तेज हवा की मार है। अभी सर गर्मियों में यहाँ पे बहुत सारी फैमिली आती हैं टूरिस्ट की, मैं नीचे इसी देख रहा हूँ, मौसम में नीचे टूरिस्ट फैमिलीज आई हाँ, हैं। फैमिली आई हुई है, वो यहाँ पे आएंगी तो उनके जब किसी पे नुकसान करेंगे तो उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। ये अभी जब हवा भी चलेगी तो इसने नीचे गिर जाना है। उधर आगे तो आबशारें भी हैं, उधर आगे ओतोर भी हैं, उधर काफ़ी अगर अच्छी जगह है, आगे वादियाँ बनी हुई हैं, उधर लोग आते रहते हैं, पहले भी आते थे, अभी ये पुल की वजह आवाम से। की सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेशन जो है वो टूरिज्म है, तो ये तो हम गलियात का टूरिज्म मेन को गेट ही बर्बाद कर रहे हैं। है। ये गलियात का मेन गेट है, ये मेन गेट में हम गलियात पे खड़े हैं, गलियात इससे पीछे शुरू होता है। तो लोग क्या चाहते हैं कि ये गलियात लोग ना आया करें? नहीं, लोग तो चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ये क्या चाहती है वो ये बताओ। हुकूमत चाहती है कि इधर आवाम ना आए। हाय, ये आवाम इधर घूमने के लिए आती है, एंजॉय करने के लिए, तो हुकूमत चाहती है ये आवाम इधर ना आए। अनफॉर्चुनेटली। सर अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे बुजुर्ग भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? सेहत अच्छी है? जी अल्लाह का ये पुल कौन ले गया भाई? यार जी कोई पता तो नहीं बिल्ला दूध पी जाता है, इधर तो पूरा पुल ही पी गया। यार जी पता नहीं, बस हमारा घर तो थोड़े दूर है, हमारे गांव जो दूर है, तो ये कभी आपको याद है जब इस पुल से आया जाए? जी 100 दफ़ा आए हैं, क्यों नहीं। तो अब इसको क्या हुआ? पता नहीं किसी ने, बस ये रात के अंधेरे में रात की तरीकी में कोई ले गया सारा, ये गार्डर भी फटे वगैरह भी और भी सरसे वगैरह भी ना, ये आपके सामने हालत है इसकी। 2 साल पहले तक इस पर गाड़ियाँ चलती 2 साल पहले तक? जी हाँ, इस पर गाड़ी जीप चलती थी। तकरीबन हमने 1000 दफ़ा बाइक लेके हम आए हैं, सारा कुछ बिल्कुल क्लियर पुल था, पुरानी पिक्चरें भी पड़ी हुई, हमने काफ़ी दरख्वास्तें दी हैं DIG साहब को, SHO साहब को, DPO साहब को, लेकिन कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो चले, ये आप पुलिस ने तो इसको चोरी से रोकना है ना, जो कि वो कभी भी पूरा माशाल्लाह काम नहीं करती। टूरिज्म डिपार्टमेंट कहाँ है? आपकी ये जो ब्रिजेस की सेफ्टी और उनकी मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे है? सर उनकी भी आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहाँ पे है? यही बात है, बिल्कुल सर, उनको भी इस काम में मतलब कि आना चाहिए, उसको देखना चाहिए जरा कि ये क्या हो रहा है ना। ठीक हो गया। चाचा जी, लाला, मुझे एक बात बताओ, कैसा लगेगा कि एक गेट इधर खड़ा हो, एक गेट उधर खड़ा हो, दरमियान वाला सब कुछ ले जाए लोग? बस यही तो हमारी रवायत है ना जी, कदीमी रवायत है कि इधर पाकिस्तान में हो क्या रहा है, बस यही देख लें। ये इसका भी यही हाल होता है, कोई तवज्जो करने वाला नहीं है। इब्तिदा से सिर्फ 4 किलोमीटर सिटी के एरिए, जहाँ कमिश्नर साहब, DIG साहब, बड़े बड़े सारे ऑफिसर बैठते हैं, सिर्फ 4 किलोमीटर के रास्ते पर। हम रोज़ाना उसके पास आपके उन दरख्वास्तें देते हैं, कहा जाते हैं, कोई तवज्जो करने वाला नाज़रीन, नहीं। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन मुझे बड़े ब्राइट होप्स हैं कि इसके हवाले से ज़रूर सोचा जाएगा। लेकिन वहीं जब मैं ये बात करता हूँ तो फौरी तौर पर मेरे दिल में एक दफ़ा ज़ोर से धड़कता है और मुझे एहसास होता है कि कहीं वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि ये 2 गेट रह जाएं और उसके बाद कोई कहे कि जनाब हम दोबारा ये पुल बनाएंगे ताकि टूरिज्म को फ़रोग दिया जा सके, और वो जो दोबारा पुल बनेगा वो लाखों करोड़ों रुपए ले जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कि ये पुल जिसको रोजाना की बुनियाद पर नोचा जाता है, चुराया जाता है और यहाँ से कीमती लोहा निकाल कर बेचा जाता है। सर ये जितने लोहे के गार्डर हैं सब खोल के ले गए हैं, रस्से खोल के ले गए हैं, बहुत कीमती चीज़ें सब उठा के ले गए हैं। क्योंकि हमारे अबाओ अजदाद की मेहनत है इसके ऊपर, और ये पुराना विरसा है। तो वाई नॉट भाई, अगर आप टूरिज्म के लिए आए हैं तो आप इस खूबसूरत पुल पर आए, यहाँ की खूबसूरत हवाओं को एंजॉय करें, यहाँ के खूबसूरत मनाजिर को देखें, यहाँ पर नीचे नदी जो बह रही है उसको देखें। लेकिन नहीं भाई, ये सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेशन जो है वो टूरिज्म है, तो ये तो हम टूरिज्म को ही बर्बाद कर रहे हैं। ये गलियात का मेन गेट है। कैसा लगेगा कि एक गेट इधर खड़ा हो, एक गेट उधर खड़ा हो, दरमियान वाला सब कुछ ले जाए लोग। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एबटाबाद में मौजूद हैं और एबटाबाद ज़ाहिर है अपनी खूबसूरती की वजह से मारूफ है, मशहूर है और सियाहों की बड़ी अट्रैक्शन है। लेकिन शर्माना चाहें तो ये देख सकते हैं मेरे बाएं जानिब, ये एक पुल है जिसको एक तारीख़ी हैसियत हासिल है, गांव गलडोब, और ये ऐसा रास्ता है जहां पर एक दौर में सियाहों की बड़ी तादाद आया करती थी, लेकिन अब हालात पतले नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लाला? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये पुल आपको याद है जब बना था? ये हम चौकीदार था, हमारा बाप चौकीदार था। इस पुल का? इस पुल का जी। जब आप चौकीदार थे उस टाइम तो ये चोरी नहीं हुआ? ना ना, अब भी चोरी हो रहे हैं। तब तो आपने पूरी जांफिशानी से इसकी हिफाजत की? नहीं, पहले तंबू लगे हुए थे तो हम लोग रहते थे उधर। हाँ। ये अब इसको क्या हुआ?
अपने लोगों ने उतार के लेके जा रहे हैं बस अपने आराम आराम से। हम भी आके रात को देखते हैं इधर कोई होता नहीं है, दूसरे दिन आते हैं कुछ भी नहीं है। दिल की तकलीफ होती है दिल को कि यार जिसकी मैंने हिफाजत की है सारी उम्र, अब वो मेरे आंखों के सामने जा रहे हैं। ये सर ये लकड़ी हम लोगों ने गांव से उठा के, धरतियों से उठा के, उनसे उठा के लोगों से 100 200 रुपया लेके लोगों को मरम्मत हमने खुद अपने हाथों से किया, ये हाथों से। अच्छा, ये जी ये पुल जब गवर्नमेंट नहीं देती थी, मुताब की दौर था, तो ये हमने खुद अपने हाथों से ये लोगों से 100 500 रुपया लेके और 10 काट के अपने लोगों ने दिए हैं। ये पुल की मरम्मती हम लोगों ने की है। तो आज हमारा दिल नहीं दुखता है हाय यार हम लोग ने क्या बना रहे हैं। ये हमारे बच्चों के खेल थी, हमारे बच्चों की जिंदगी थी, लेकिन ये लोग जा रहे हैं, कोई तवज्जो तो हम लोग करते नहीं हो, क्या बोल सकते हैं। डाडे बादशाह। लाला मुझे एक बात बताओ, जी सर। नाराज ना होना जी सर। कि हुकूमतें हिफाजत के लिए होती हैं और वो अपने कौमी विरसों की हिफाजत करती हैं। कभी कोई हुक्मरान कोई यहाँ पर आया, किसी ने आकर कहा कि यार ये क्या हम कर रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, कोई ऐसी चीज देखी? ये सर हमने अभी तक किसी ने सुना नहीं है। ये कोई लेके जाते हैं, किसी को बोलते भी हैं तो बोलते हैं बस हाँ ठीक है करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। अंधे बन जाते हैं ना। बस जाते हैं। स्याह आते थे आगे गलियात वाली साइड पर जाते थे यहाँ से, गलियात इधर है सर। इधर से कनेक्टिविटी क्या है? ये हवेलियाँ है। हवेलियाँ हैं, हाँ। इधर से हवेलियाँ जाते थे। जी। ठीक है, और अब ये रास्ता ही नहीं है। रास्ता किधर होएगा भाई? पहली दफा जब पुल से कुछ चोरी हुआ था तो फटे शटे और गार्डर निकाले गए थे, पता चला था? जी पता चला था, उधर से गार्डर खुले हैं। ये लोगों ने साथ में मीटिंगें की है। हाँ। यार भाई ये कौन लेके जाता है, उससे बाद ये ज्यादा जाने लगते, पहले कम थे। मेरे को चेयरमैन साहब को हमने बोला ये भाई गार्डर जा रहे हैं, और चेयरमैन साहब ने बोला उसको खोलो। वहाँ हम आए उधर रस्सा ले गया, यार इसको किसी को बचावे, तो बहुत कोशिश किया, नहीं बचा। तो दूसरे दिन आया, हुआ ही नहीं है। आज ये चौथा 10वां 15वां दिन है, ये अभी ये चाल चल रहे। पहले एक रस्सा पड़ा हुआ था नीचे नदी पे, वो कोई ले गया ऐसा मोटे वाला। यानी इसको बकायदा काटा जा रहा है और इसको ले जाया जा रहा है। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। वो कहते हैं ना, बागबान ही बाग की अहमियत और हैसियत को जान सकते हैं, क्योंकि उसने उस बाग की उन पौधों की रखवाली की होती है। तो ये बुजुर्ग जो हैं, ये इस पुल के चौकीदार थे और इन्होंने अपने हाथों से इसको मुरम्मत किया हुआ था। तो आपको उनकी तकलीफ देख सकते हैं, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, अंधे जो हैं उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। लाला क्या ये 100 रुपए अगर जमा करके इसको हमको बना के दो भाई, हमको ये काटने की कोशिश नहीं करना। बड़ी मेहरबानी। ये क्योंकि हमारे बाप दादे की मलकियत थी, उन लोगों ने इकबाल खान ने इसको दिए हैं, तो इसको मेहरबानी करके बना के तो मरम्मत करने के अली अमीन गंडापुर शायद सुन रहा हो, हुक्म दे उसको, आप बुजुर्ग हैं उसके। बेटे ये इसको बना के दो, आपकी मेहरबानी होगी यार, हम लोग को ये नहीं चाहिए, ये ज़या नहीं करना। ये हमारे बाप दादे की मलकियत थी यार, ये हम अपनी जायदाद को छोड़ नहीं सकते हैं। लेते हैं, छोड़ते नहीं है मेरे भाई। मरम्मत करके दो, ये मेहरबानी होगी, गवर्नमेंट करे या तुम खुद करके दो, या किसी से मांग के ला के दो। हमारे बच्चों की ये खलीन है, ये उसका मेहरबानी होगी, ये आपको बना के दो भाई साहब। जज़ाकल्लाह। ये चौकीदार थे इसी पुल के। चाचा सुनो, ये इसी पुल के चौकीदार थे और अली अमीन गंडापुर साहब ये आपको बेटा करके बात कर रहे थे, क्योंकि बड़े सियासतदान को, बड़े अफसर को देखकर फौरी सर ज़हन से निकलता है। ये गोरा छोड़ के गया था, हमारे यहाँ भाई बेटा, चाचा, ताया, मामा ये रिश्ते हुआ करते हैं, तो अब उन्होंने आपको बेटा करके बात की है। अली खान को मेरे बड़े भाई ने बेकायदा जलसे में गल डोग में बोला कि अपने मलकियत को छोड़नी, ये तुम्हारे बाप दादे की निशानी है, तुम्हारे चाचे ताए की निशानी है। ये मेरे भाई ने बोला, तमाम दुनिया सुन रही थी, ये उसका हक था। हमको कौड़ी पे नहीं जाने देंगे, हम अपनी जायदाद को उसको वापस नहीं करेंगे, हम मरेंगे, हम इसको मरम्मत करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं ये गवर्नमेंट, ये पाकिस्तान बोलते हुए हमारे बस से काम बाहर है, हम 1-1 रुपया चंदा करके इसको मरम्मत करेंगे। फिर गवर्नमेंट का काम है कि इसका तवज्जो देना है, ये गवर्नमेंट के पैसे हमारे नहीं है। 98 लाख का ये टंडोर हुआ, 98,000 का ये टंडोर हुआ, इकबाल खान ने दिया हम चौकीदार से। ये हमारा तुम्हारा काम है कि इसको हम मरम्मत करके दो। भावे किधर साहब ने ये पुल बनवाया था और 98 लाख का, 98,000 का 98,000 टेंडर हुआ था। और अब बदकिस्मती ये है कि इकबाल खान साहब का जो भतीजा है वो अली इस वक्त इक़्तिदार में है, ताकत में है, मनसब पर है, और उनके अपने हलके में उनके अजदाद के जो निशानियाँ हैं
وہ یتیمی کاٹ رہی ہیں. ویسے میرے خیال سے بھتیجے بیٹوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا, تو جب بیٹے ہوتے ہیں نا چاچا, ہے نا, دیکھو وارث ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں. بیٹا اگر نہیں ہوئے تو بھتیجوں کو وصیت ملتی ہے نا, لوگوں کو تو نہیں ملتی ہے, نہ تیرے کو نہ میرے کو. ہاں, تو کیا علی کو پتہ نہیں ہے؟ اچھا پھر تو میں بولتا ہوں جیسے اس کی گاڑی کے ٹائر بڑے بڑے تو نہیں ہیں؟ یار میرے کو پتہ نہیں ہے گاڑی کا, ہم اس کو جانتا بھی نہیں ہے, لیکن بولے ہے میرے بھائی نے بھی اس کو بولے ہے کہ بھائی اس کو مرمت کرو. ہم یہ فریاد کرتے ہیں کہ اس کو مرمت کرو. پہلے ہم لوگوں نے لوگوں سے 10-10 20-20 روپے اکڑا کے درخت کاٹ کے اس کو مرمت کیا ہے. ہمارا بچہ ندی میں گیا تھا, گورنمنٹ نے توجہ کم دی تھی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں انی پہ پیندیے تے کتے پہ چڑھتے نے. یہاں پر وہ محاورہ جو ہے وہ ٹھیک نظر آ رہا ہے. وہ جیپ آئی تھی جی, اور دیکھیں وہ آلٹرنیٹ روٹ سے اس کو نکلنا پڑ رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ جو ثقافتی ورثہ ہے, دس از نو مور. پل جس کو روزانہ کی بنیاد پر نوچا جاتا ہے, چورایا جاتا ہے, اور یہاں سے قیمتی لوہا نکال کر بیچا جاتا ہے. سر یہ جتنے لوہے کے گارڈر ہیں سب کھول کے لے گئے ہیں, رسے کھول کے لے گئے ہیں, بہت قیمتی چیزیں سب اٹھا کے لے گئے ہیں. کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کی محنت ہے اس کے اوپر, اور یہ پرانا ورثہ ہے. تو وائی ناٹ بھائی, اگر آپ ٹورزم کے لیے آئے ہیں تو آپ اس خوبصورت پل پر آئیں, یہاں کی خوبصورت ہواؤں کو انجوائے کریں, یہاں کے خوبصورت مناظر کو دیکھیں, یہاں پر نیچے ندی جو بہ رہی ہے اس کو دیکھیں. لیکن نہیں بھائی, سب سے بڑی ریونیو جنریشن جو ہے وہ ٹورزم ہے, تو ہم ٹورزم کو ہی برباد کر رہے ہیں. یہ گلیات کا مین گیٹ ہے. کیسا لگے گا کہ ایک گیٹ ادھر کھڑا ہو, ایک گیٹ ادھر کھڑا ہو, درمیان والا سب کچھ لے جائے لوگ. سر السلام علیکم, آپ یہاں پر کیا ذمہ داری ادا کرتے ہیں؟ آگے آئیں. سر میں اس علاقے کا جنرل کونسلر ہوں. یار آپ کے سامنے چوری ہو گیا, آپ کیا کر رہے ہو؟ سامنے چوری ہوتا تھا, جیسے بھی نپٹنا پڑتا میں نپٹ جاتا, لیکن رات کی تاریکی میں 2 بجے کے بعد 4 بجے سے پہلے رات کو پل چوری ہوتا ہے. میرا گاؤں کم سے کم 3 میل دور ہے. رات کو آگے آپ کو پتہ ہے 3 بجے یا 2 بجے ہم گھر سے آگے ان کی چوکیداری نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے ڈی ایس پی صاحب کو بھی درخواست دی ہے, ڈی آئی جی صاحب کو بھی دی ہے, اور تھانہ بگلوتر میں بھی درخواست دی ہے, اور تھانہ نواں شہر میں بھی دی ہے, تھانہ رجویہ میں بھی دی ہے. جب ایس ایچ او صاحب آئے, آدمی یہاں لے کے انہوں نے کہا, ایک نے کہا ہمارے ساتھ, ایس ایچ او آیا موقع پہ؟ جی ایس ایچ او ویلیاں آئے, انہوں نے کہا یہ علاقہ میرے ساتھ نہیں ہے. چلو جی, پھر دوبارہ جو ہے بگنوتر والے ایس ایچ او صاحب وہ الگ کہتے ہیں علاقہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. سر جب ہمارے ساتھ پولیس تھانہ ہی کوئی نہیں لگتا ہے تو ہم کس کے پاس جا کے شکایت کریں؟ ہم کس کے آگے فریاد لگائیں؟ ہمارے ایم پی اے علی خان, وہ اندھے ہیں کیا؟ ان کو بھی بتایا, آج 3-4 دن پہلے جلسہ کیا ہے. ایم این اے ہمارے رجب عباسی, ان کو بھی جلسے میں بتایا ہمارا پل چوری ہو رہا ہے, لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. سر کیا جواب کیا دے؟ جواب کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. میں نے تقریر کے اندر اپنے جلسے کے اندر بتایا کہ میرا پل چوری ہے, رات کی تاریکی میں ہم چوکیداری نہیں کر سکتے ہیں, آپ ہمارے ایم پی ایم ہیں, اس کی حفاظت آپ کر رہے ہیں. اقبال خان جدون وزیر خزانہ نے دیا تھا, علی خان کا وہ چاچا تھا, اس کو میں نے کہا ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, اپنے چاچے کی وجہ سے اس کی پل کی مرمت کرا دو. ڈی آئی جی صاحب ڈی سی صاحب کو ہم نے درخواست دی ہے, کبھی مرمت نہیں ہوتا ہے تو اس کو نیلام کر کے آگے بہت مشکل علاقہ ہے, یہ پیسہ آپ کی نگرانی میں روڈ پر لگ جائے. راتوں رات چوری ہو رہا ہے, ہمارا بھی نقصان ہے اور ہماری حکومت کا بھی نقصان ہے. یہ دونوں چیزوں کو نقصان. ہمارا ایک گاؤں گل ڈوگنی ہے, اس پل کے اوپر سے کم 30 گاؤں گزرتے تھے, جن کا باغ, بانڈی, کیال, ٹہری, جسوال, گل, ڈوگ, صدرہ, یہ پورا علاقہ مساوات کا سارا اس علاقے سے گزرتا تھا. لیکن جب یہ ٹوٹ جاتا ہے یا پہ گر جاتا ہے, کہتے ہیں گل ڈوگ والوں کا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے کو اللہ نے اتنی حیثیت دی, کسی آدمی کو راستہ بنا کے دیں. لیکن ہمارا اپنا جتنے ہمارے پی ایم این اے ہیں, ڈی سی صاحب ہے, اے سی صاحب ہے, ان کا درخواست ہے اس کو خدا را بچائیں. ہمارے سے جس کی چوکیداری نہیں ہو سکتی, ہم کمزور ہیں. ہم آسانی کرے. علی امین گنڈاپور صاحب, this is what the situation of KPK is. ٹمبر مافیا یہاں پر, جس نے لکڑی چوری کرنی ہی کرنی ہے. یہاں پر لوہا چرانے والا مافیا, یہاں پر نہ جانے سرکار میں کتنے مافیاز. خدا را اس قومی ورثے کو بچانے کی کوشش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں, اسی وجہ سے آپ آج کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہی چال چلن رہا تو یہ کرسی بہت بے وفا ہے, یہ اپنے اوپر بیٹھنے والے کو اس طرح اکھاڑ کر زمین پر پٹکتی ہے. اس سے پہلے کہ آواز آئے اور جب دیکھیں تو پتہ چلے کہ آپ کی حکومت پٹک چکی ہے یہ کرسی. احتیاط کریں.
नाज़रीन, वंस अगेन हारून तनोली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो नियो टीवी के मकामी नुमाइंदा भी हैं। तनोली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है? खैर, अल्लाह का शुक्र वो है। हमारे यहाँ पंजाबी की मिसाल है, अन्नी पे पींदी है तो कुत्ते पे चढ़ते ने। यानी वो एक अंधी औरत आटा पीस रही थी चक्की पे, वो निकाल के साइड पे रखती है और पीसने लगती है, कुत्ते आके चाट के चले जाते हैं, उसको पता ही नहीं। यहाँ पे भी ऐसे ही? ऐसे ही हाल है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा हाल है, क्योंकि एबटाबाद शहर है, शहर के अंदर ये चीज़ें तारीखी विरसा है। ये जो पुल बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, ये पुराने वक्तों के उन लोगों ने अपने तख्तों से मुख्तलिफ दरख्तों की चिराई करके रस्सों से अपनी मदद आपके तहत इस पुल को बनाया था। ये देखा जाए तो इसके तकरीबन 150 साल से ज़ायद अरसा इस पुल का हो चुका है। उसके बाद वज़ीर आला सरहद उस वक़्त हुआ करते थे इकबाल खान जदून साहब, उन्होंने 98,000 इस पुल के लिए दिया था, ये पुल बन गया था। फिर उसके बाद हमारे एक और जिनका ताल्लुक हज़ारा से ही है, सरदार मेहताब अहमद खान साहब वज़ीर आला बने थे, तो ये पत्थर और लोहे के गार्डर और ये लोहे के रस्से उन्होंने दिए थे। इन लोगों की ज़िंदगी सहल हो गई थी। इसके ऊपर तकरीबन देखा जाए तो 20 से 25 गांव हैं, बहुत बड़ी आबादियां हैं। उन लोगों का गुजर बसर इस पुल से था। अब वो ये कह रहे हैं कि ये उनका जो आबाई विरसा है, उनके आबाओ अजदाद की तरफ से ये बना कर दिया गया था। पास एक अल्टरनेटिव पुल है जी बिल्कुल, लेकिन दे वांट टू इंटैक्ट दिस पुल एज वेल, दिस ब्रिज एज वेल। बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि जी पैदल जाने वालों के लिए ये शॉर्ट रास्ता था, क्योंकि वो दूसरा जो पुल बन गया अब वो भी अच्छा है, क्योंकि वो गाड़ी उसको यूज़ कर सकते हैं, इसको पैदल आने जाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। इसके अंदर जो चीज़ें लगी हुई थी, लोहे के गार्डर लगे हुए थे, वो चोरी करके ले गए हैं। पुलिस वालों को इन्होंने एप्लीकेशन दी है, वो थाने का तयन नहीं हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कोई ऐसा भाई जिसको ये पता है कि थाने का तयन नहीं हो रहा, वही छुरी फेरी जा रहा हो? ये लगता तो ये है, क्या पता है किसी थाने के अंदर ये गार्डर लगे हों, ये भी नहीं कहा जा सकता। वैसे ऐसा माल थानों में नहीं लगता है, वैसे ऐसा माल थानों में नहीं लगता, वो कहीं और लगता है। क्या पता है उतली दूसरी बिल्डिंग बनाई हो, ऊपर कुछ लगा दिया हो, अल्लाह पनाह ये भी वाहिद नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात, चार थाने जिम्मेदारी इसकी नहीं ले रहे हैं। एक कह रहा है मेरी हदूद नहीं, दूसरा कह रहा है मेरी हदूद नहीं, तीसरा कह रहा है मेरी हदूद नहीं, चौथा कह रहा है मेरी हदूद। इस पुल की सियाती अहमियत क्या है? इस पुल की सियाती अहमियत ये है कि एक बड़े अच्छे मकाम पे है, यहाँ नीचे नदी बह रही है, एक बहुत खूबसूरत ये व्यू है, ये पिकनिक स्पॉट है, दामन है, ये दामन है बिल्कुल। और इसके साथ जो है माइनिंग का एरिया भी है, या माइनिंग भी हो रही है इसके ऊपर इसी इलाके में, और ख़ूबसूरती भी काफ़ी है। और इससे जो पैदल जो आने जाने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा उनको जो है बहुत ज़्यादा इससे सहूलत मिल सकती है, क्योंकि हर एक के पास गाड़ी तो है नहीं। देहात है, देहातों में किसके पास गाड़ियाँ हैं? गरीब लोग हैं। गाड़ियाँ MPAs, MNAs, हमारे DC, AC, कमिश्नर, प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ उनके पास हैं। अल्लाह पनाह। ये गरीब लोग हैं, इनके पास क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँ, और बिलखसूस CM KP के हम लोग बहैसियत मीडिया पर्सनस वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम उन इश्यूज़ को हाईलाइट करें जो इश्यूज़ आम आदमी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं, उसके इमोशंस को इम्पैक्ट करते हैं, उसके जज्बात के साथ खेलते हैं। अगर इन पर काम किया जा सके तो ज़रूर करें। हो सकता है आपको हमारी कोई बात बुरी लगे, लेकिन अगर बुरी लग भी जाए तो आफ्टर ऑल यू आर द CM ऑफ KPK। आप कोई साजा माजा ताजा गामा तो है नहीं जिसे हमें एहतियात से बात करनी चाहिए। आप बाकायदा एक प्रोविंस के CM हैं और आपके पास वो कहते हैं ना, जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जहाद है। अब आप कहेंगे मैं जाबिर तो नहीं हूँ, तो जाबिर और क्या होता है जिसको अपनी मखलूक का, अपनी अवाम का, अपनी रियाया का, अपनी रैयत का ख्याल ना हो, और वो ये समझे कि वो सब कुछ अच्छा कर रहा है, जबकि रैयत ये समझे, रियाया ये समझे, मखलूक ये समझे कि हाकिम सब कुछ नहीं बल्कि कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है कि जबर का एक कैटेगरी तो हो सकती है। तो डरें उस वक्त से कि जब आप जाबिर सुल्तान बन जाएं और आपके सामने बात करने वाली बात कलमा हक बन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी अजियत, बहुत बड़ी तकलीफ होगी। तो देखिएगा, आफियत कमाइएगा, समझिएगा। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।